Hello everybody and welcome to the Beena Decodes. I am so touched, worried and even overwhelmed with the number of messages that I have received personally over my email or even in my comment section, that so many of you are suffering from the same problem. Problem यहाँ पे है endometriosis, जिसके बारे में मैंने कुछ वीडियो पहले मैंने एक बात किया और उसके बाद मुझे पता चला that I was not alone and there are so many of us who is suffering from the same condition. तो लोग मुझसे पूछ रहे हैं what did you do, how did this happen? I mean it was almost close to a miracle. Yes, पर यहाँ पे भी मैं अकेली नहीं हूँ. मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में ही मैं पढ़ रही हूँ there are several other women जिनको भी endometriosis था and they have conceived and right now they are mother of healthy babies. So that is amazing. Yes, ये चीज़ जिस दिन मुझे पता चला था उस दिन मेरे में एक अलग कॉन्फिडेंस आया, मेरे में एक अलग हिम्मत मिला मुझे and I just felt that the world turned positive. You know, the day you feel, the day you come to know that you are not alone, आपके अंदर एक अलग होप जग जाएगा. आपको नहीं लगेगा कि हाय भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है. ऐसा नहीं है. There are so many other people along with you who are going through the same condition and there are so many other people जिनके इस condition के बावजूद अचानक से सब कुछ अच्छा हो गया and they overcame the problem. That means they are also not alone. You can be another one of them. So this is the video as to what all I did and I really don't know what helped, but maybe it just might help you. To tell you the truth, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि there were two conditions that I suffered from. One was endometriosis and the other one was adenomyosis. If you do not know about it, तो उन दोनों के बारे में मैं थोड़ा सा knowledge दे दूं. Endometriosis is a condition जहाँ पे there is an abnormal tissue growth outside of the uterus और adenomyosis is something जहाँ पे there is a abnormal tissue growth inside the wall of the uterus. तो जहाँ पे एक्चुअली जो टिश्यू जो ग्रोथ हो रहा है विच इज सपोज टू बी ऑन द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, तो जो ब्लीडिंग होता है इट हैपन्स ऑन द यूटेरन लाइनिंग. लेकिन यहाँ पे क्या होता है ब्लीडिंग इनसाइड द मसल्स एंड ब्लीडिंग आउटसाइड द यूटेरस. सो इट इज वियर्ड कंडीशन जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि पहले था नहीं. नाउ थिंकिंग अबाउट इट आई सडनली स्टार्टेड फीलिंग दैट देयर वर हेवी क्रैम्प्स एंड एक्सट्रीम पेन एंड हेवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग माई पीरियड. सो मे बी दैट इज द टाइम दैट आई गॉट दिस कंडीशन. अदरवाइज राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड मुझे ऐसा कोई कंडीशन नहीं था. बट मैं आस पास इधर उधर 20-21 की लड़कियों से सुनती हूँ that they have PCOD, PCOS and then there are so many of you who are writing to me that you have detected this condition suddenly or maybe for the last 2 years, 3 years, 4 years. So yes, ये जो condition होता है इससे child bearing थोड़ा मुश्किल हो जाता है. In fact, this is kind of a cause of infertility जिसको बोलते हैं and it just happens. मतलब कैसे होता है किसी को नहीं पता. Sometimes it happens if you were already pregnant और आपको अगर abortions हुए हैं तो उसके लिए टिश्यू में scarring हो जाता है and that is where I think adenomyosis happens. It also happens when you try to conceive later in life. मतलब अराउंड द 20s इट इज़ नॉट वेरी कॉमन. लेकिन आज जैसे मैं पढ़ रही हूँ कमेंट्स तो मुझे वहाँ से पता चल रहा है कि पीपल इन देयर 20s ऑल्सो हैव एंडोमेट्रियोसिस एंड जो मुझे पहले पता नहीं था. बट जस्ट आफ्टर 30-32 व्हेन यू ट्राई टू कंसीव दैट्स व्हेन पीपल एक्चुअली फाइंड आउट दैट लेटर इन द एज दिस एंडोमेट्रियोसिस और एडेनोमायोसिस इज मोर कॉमन. अभी तो मैंने डिटेल बता दिया कि ये क्या है और क्या था एंड हाउ आई केम टू नो अबाउट इट. हाउ आई केम टू नो अबाउट इट वाज व्हेन I went to my gynecologist and she had a proper examination और उसके बाद ही पता चल गया. उसके बाद शुरू हुआ मेरा भाग दौड़. In fact, I did everything. Coming to everything means everything together.
तो यहाँ पे मैं इस रिंग के बारे में बात करूँगी। प्लीज़ डोंट टेक इट लाइक कि मैंने किया तो आप लोगों को भी करना है, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मुझे करना था इसीलिए मैंने किया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं एग्जैक्टली क्या करूं, तो इसीलिए मैंने सब कुछ किया। और ये जो रिंग आप देख रहे हैं, इससे पहले आपने देखा होगा आई यूज़ टू वेयर लोड्स ऑफ रिंग्स। मैं एक पन्ना पहनती थी, फिर मैं और भी कुछ स्टोन्स पहनती थी। तो मैंने एस्ट्रोलॉजर से बात किया एंड दैट इज़ व्हेन माय एस्ट्रोलॉजर एक्चुअली सॉ माय चार्ट और उन्होंने कहा दैट आपके चार्ट में बहुत मुश्किल दिख रहा है, तो आपने ये जो स्टोन्स पहना है, दीज स्टोन्स आर मोर आई मीन टेकिंग यू टुवर्ड्स योर वर्क, आपके मन को एकदम काम की तरफ घुसा रहा है। सो इट इज़ बेटर दैट यू नीड टू जस्ट कूल योर माइंड डाउन एंड यू नो द चाइल्ड बेयरिंग थिंग इन योर प्लैनेट्स एंड ऑल द स्टफ। तो इसीलिए उन्होंने मुझे ये रिंग पहनाया, रुद्राक्ष, छोटे मिनी रुद्राक्ष है और ये बन के आया है देहरादून से। ही एक्चुअली गेव मी फ्यू मंत्रास टू चांट, तो जो मैं रोज़ शाम को बैठे बैठे चांट करती थी। इनफैक्ट वहीं से मुझे थोड़ा सा चांटिंग और यू नो ब्रेन को शांत करने का एक रास्ता मिला। उन्होंने मुझे और एक चीज़, बहुत अच्छा चीज़ समझाया कि जब हम पंडित बुला के घर पे पूजा करते हैं, मतलब जो बेनिफिट है पूजा करने का जिसके लिए हम करते, वो सारा बेनिफिट पंडित जी के पास चला जाता है। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द मंत्रास। और आप कुछ नहीं, आपको मंदिर में भी बैठने की जरूरत नहीं है। टेक सम टाइम एंड चांट दोज मंत्रास, यू नो विच मंत्रा यू आर चांटिंग, तो उसकी जो भी बेनिफिट्स होंगे वो आपके पास आएंगे। और मंदिर में भी जाएं तो आई मीन यू नो योर ओन मंत्रास एंड यू कैन एक्चुअली चांट। तो ये एक्चुअली मुझे इन्होंने इसीलिए बताया क्योंकि हम लोगों ने जाके एक नवग्रह पूजा भी हम लोगों ने कराया। जस्ट आई सेड दैट वी काइंड ऑफ डिड एवरीथिंग, सो इसीलिए आई एम टेलिंग, प्लीज डोंट जज मी, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। मैंने ऑफ कोर्स विजिटेड द डॉक्टर and पहले it was a normal gynecologist and normal gynecologist was telling me yeah सब ठीक है, हो जाएगा and things like that. That's when I realized कि मैं हो जाएगा के ऊपर डिपेंड करके बैठ नहीं सकती हूँ. I needed a fast paced answer and why. So that's when I went to a proper IVF specialist. I went to two very big doctors in Mumbai. उन लोगों के नाम मैं right now नहीं दूंगी. Maybe later on मैं उनमें से एक के साथ एक वीडियो करूंगी ताकि आपको actually डिटेल में और आंसर मिले. और एक मैं बहुत ही बड़ी डॉक्टर के पास गई. फिर मुझे वहाँ से लगा कि आई वुड रादर गो टू एक कंफर्टेबल जगह. तो आई वेंट समवेयर जो मेरे घर के पास ही था, एक कंफर्टेबल जगह पे. वहाँ पे आई स्टार्टेड माई ट्रीटमेंट एंड ऑफ कोर्स सिंपल आपको सिर्फ नाम बता दूँ, IUI, IVF, आई ट्राइड एवरीथिंग. इनफैक्ट फॉर माई एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमाइसिस आई डिड हिस्ट्रोस्कोपी ऑल्सो एंड माई डॉक्टर वॉज अमेजिंग. और एक चीज़ जो मैंने हमेशा अपने आप को ना बहुत पॉजिटिवली बिलीव करके मैं आगे बढ़ी हूँ. आई नेवर हैड अ डाउट कि ये क्यों करूँ, वो क्यों करूँ, होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो वैसा. Whatever my doctor is telling is good and I need to trust her. I trusted her completely. The third thing that I did was acupuncture. Even though it is a Chinese form of treatment and जो नॉर्मल डॉक्टर्स है, आई मीन जो एलोपैथिक डॉक्टर्स है, सर्जन्स है, दे डू नॉट बिलीव इन दैट. आई वुड ऑल्सो से कि मुझे नहीं पता कि दैट एक्चुअली हेल्प्ड, बट इट हेल्प्ड इन डिफरेंट वे. आई विल टेल यू व्हाई. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई वेंट टू एन acupuncturist, उनका भी नंबर मैं नीचे दे दूंगी, हो सकता है इन केस इफ यू आर लुकिंग फॉर, यू कैन गो अहेड. शी helped me understand that how much stress I am taking and that stress is so bad for health. वहाँ पे भी मैं एक्चुअली स्ट्रेस मैनेजमेंट थोड़ा सीखी, प्लस
थ्रू हर ट्रीटमेंट मेरा स्ट्रेस कम होने लग गया. द फर्स्ट फ्यू ट्रीटमेंट्स वर जस्ट टू गेट माई बॉडी रिड ऑफ टॉक्सिन्स. तो यहाँ पे कपिंग का आप देख सकते हैं, यहाँ पे वी डिड कपिंग्स. तो जितना ज़्यादा निशान आया मतलब उतना ज़्यादा टॉक्सिन था मेरे बॉडी में, इन माई माइंड एंड ऑल. तो मेरे माइंड को काम करने के लिए देयर यूज्ड टू बी needles pricked on my head to just focus my mind, to calm my mind. Then we did loads of implantations के लिए acupuncture, and to cure my endometriosis we did different kind of treatments. Exactly मैं हर एक चीज़ के लिए पूछती नहीं थी. I used to show her my scan reports और वो देख देख के she used to understand and she used to give me the treatment. I feel that helped me in two ways. First, जैसे मैंने कहा, the treatment that I received. Secondly, in that place I met so many people जो मेरे सेम कंडीशन से गुजर रहे थे, नॉट बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस और एनीथिंग, जस्ट इनफर्टिलिटी. देयर वर नो कॉज, नथिंग, बट हो नहीं रहा. सो मुझे ऐसा लगा कि कॉज कुछ भी हो, द रिजल्ट इज दैट कि मैं पॉजिटिव रहूं और मुझे अच्छा सोचना है, मुझे क्लियरली सोचना है कि मुझे क्या चाहिए. एंड इट हैपेंड. एंड उनसे ही मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी. एंड शी यूज्ड टू टेल मी लोड्स ऑफ गुड स्टोरीज, पॉजिटिव स्टोरी, हाउ किस तरीके से किसी का एंडोमेट्रियोसिस ओवरनाइट ख़त्म हो गया, ओवरनाइट ठीक हो गया, या कोई ऐसे ही कंसीव कर लिया इवन विद द एंडोमेट्रियोसिस इन प्लेस. तो सब कुछ के साथ आई जस्ट गॉट अ वेरी पॉजिटिव वाइब. अनदर थिंग दैट आई डिड वाज फ्लावर थेरेपी. या ये मेरे लिए भी बहुत ही नया था. एंड आई जस्ट वांटेड टू डू, एंड माय डॉक्टर ओनली सजेस्टेड दैट आई सी somebody who is a flower therapist, and I really did not know whether that worked or no, but I did it. और वहाँ पे फ्लावर के नेक्टर कुछ थोड़ा थोड़ा यू हैव टू टेक. दैट इज ऑल्सो मोस्टली टू हील द माइंड. सब कुछ के साथ जो मैं समझी हूँ, द माइंड हैज द बिगेस्ट पावर. तो सब लोग ही जो टारगेट कर रहे थे वॉज टू ट्रीट द माइंड. एंड एक्चुअली मेरा इतना बड़ा वीडियो करने के पीछे का मकसद है, आप वो करिए जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है और आपको लगता है कि मे बी दिस विल वर्क और मे बी दैट विल वर्क और मे बी दैट वर्क फॉर दैट पर्सन. और बट देन द वन थिंग दैट वुड वर्क इज having a positive mindset. बस एक positive mindset रखिए and I'm sure things will work out positively. So this flower therapist, उनका भी नाम मैं नीचे दे दूंगी. So she asked me loads of questions. What is my problem and maybe what is the blockage that I have in my mind. मुझे नहीं पता था कि क्या blockage है मेरे मन में. मैं तो हमेशा सोचती थी मैं positive ही हूँ, लेकिन फिर मुझे पता चला मेरे mind में कुछ blockage है and I have to overcome that blockage and things like that. And I did a few treatments with her. And anything else did I do? Yes, I did workout. क्योंकि हर एक चीज करने के बाद एक बहुत exhaustion होता है. Workout is a form of keeping yourself physically fit, and all the symptoms of endometriosis and all things come under control if you are physically fit. You have to work out. मतलब ऐसा अपने आप को छोड़ के एक अलग दुनिया में ट्रैवल हो जाना, इट इज़ द ईजीएस्ट थिंग टू हैपन. और यही हो जाता है क्योंकि दिमाग में 24 घंटे एक ही बात घूमता रहता है. सो यू फील ऑलरेडी टू एग्जॉस्टेड टू वर्कआउट. सो अपने आप को थोड़ा सा इकट्ठा करके वर्कआउट, जस्ट डू सम वर्कआउट, join a gym, join a community and work out. Also I got on to a clean lifestyle. Talking about clean lifestyle is also a weird thing because we are functioned to use plastic, we are functioned to use a lot of things जो हमारे लिए अच्छा नहीं है. And all these things from the environment is accumulating toxins inside our body, and that is having a bad impact on the female hormones and female reproductive system. And I would say endometriosis, adenomyosis is a पार्ट ऑफ इट. अभी जैसे मैंने एक इंस्टाग्राम में स्टोरी डाला दैट कोकोनट वाटर पी रही हूँ बट आई गॉट माई प्लास्टिक स्ट्रॉ. बट देन देयर वर फ्यू पीपल जिन्होंने लिखा रही तो प्लास्टिक से कवर्ड है, क्योंकि वो जो दुकान वाला देके गया वो उसने प्लास्टिक से कवर करके दिया ताकि फॉर कोविड प्रोटोकॉल्स. और
things like that. I can't change each and every one of human beings out here in the world. I can change myself. मैं क्या change ला सकती हूँ during drinking that coconut water is plastic straw के बदले में I have gotten steel straw to use at home. मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है और जो टेफलॉन कोटिंग वाले जो भी कुकिंग वेयर्स थे, I have replaced those with लोहे का कुकिंग वेयर. यू नो प्लास्टिक के बॉटल्स मेरे घर में आपको अभी एक भी नहीं दिखेंगे, थैंकफुली. ओवर द इयर्स थोड़े टाइम लगे क्योंकि मैं जितना फेंक रही थी मतलब मेरी मम्मी वीडियो देखेगी तो मारेगी मुझे, क्योंकि वो उठा उठा के ला के रख दे रही थी, मम्मी हो या पापा हो. ऐसा लग रहा था अरे ऐसे किसे इतना अच्छा बॉटल है, ऐसे तुम नहीं मतलब निकाल सकते हो एंड ऑल. आई हैड टू जस्ट गेट इट ऑफ माई सिस्टम, गेट इट ऑफ माई हाउस. मतलब मैं एक जगह तो ढंग से बदलाव लाऊं, फिर तो मैं दुनिया में बदलाव लाने के बारे में सोच सकती हूँ. सो आई रियली वर्कड ऑन थ्रोइंग अवे प्लास्टिक्स फ्रॉम माई एनवायरमेंट एंड यूजिंग ऑफ एनी टॉक्सिक हार्मफुल केमिकल्स विद द मेकअप्स. या जो मेकअप में कुछ मतलब बहुत ही ईजीली अवेलेबल ब्रांड्स है जो मेकअप प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बट दे आर हेविली लोडेड विथ लेड एंड ऑल दो स्टफ विच एक्चुअली पेनिट्रेट्स योर सिस्टम एंड ब्रिंग्स हार्मोनल चेंजेस. इसीलिए मैं बोलती हूँ कि यूज विद रीड द लेबल देन यूज प्रोडक्ट्स जो भी आप यूज कर रहे हैं. तो इसीलिए कोशिश करती हूँ जो भी क्लीन कॉस्मेटिक्स है उन लोगों के साथ मैं कोलैबोरेट करके आप लोगों को मैं समझाऊं, क्योंकि यू नो वी शुड नॉट थ्रो आउट द फन फ्रॉम आवर लाइफ. मुझे अच्छा लगना है, मुझे अच्छा दिखना है, बट आई नीड यू नो द राइट थिंग जो मैं करना चाहती हूँ, जो मैं लगाना चाहती हूँ. और आजकल तो बच्चे 10, 11, 12 साल से मेकअप करते हैं. मुझे भी अच्छा लगता था, स्कूल में होती थी तो एनुअल डे फंक्शन में लिपस्टिक लगा के अच्छे से सज धज के स्कूल जाती थी. सो ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट you know clean cosmetics, clean makeup and even clean skin care in your regime. Or last but not the least, please don't take stress. Stress is the last thing that you want in your life. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि स्ट्रेस से कुछ होता है, बट अगर आपका एक कंडीशन है तो स्ट्रेस से वो बढ़ता है, वो कम नहीं होता है. सो इसीलिए टेक दैट स्ट्रेस आउट ऑफ योर सिस्टम, ब्रीद इन दैट ऑल द पॉजिटिविटीज आई एम ब्रीदिंग इन एंड ब्रीद आउट एंड से all the negativity go out. Breathe in positivity, all the negativity go out of my body. Tell your body ki all the negativity just go out of my system. This way you can actually throw out all sorts of negative thoughts, all sorts of negative things from your body also maybe. So all these things मैंने बोला है. Again I said please don't judge me and don't follow everything. Maybe they were not all the right solutions, but they all gave me a peace of mind. They all led me to a cumulative goal of getting pregnant. So with that I am ending the video and I just hope धीरे धीरे मैं अपने दिल की बात आप लोगों के साथ कितना ज़्यादा करती हूँ. एंड थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी एंड थैंक यू फॉर स्टैंडिंग बाय मी. These two hands, this is like I'm holding your hand. Each of you are my community. और सिर्फ मेरे साथ आप लोगों को बात करने की ज़रूरत नहीं है. मेरे जो भी कमेंट सेक्शन है वहाँ पे कितने लोग लिखते हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ भी बात कर सकते हैं, उनकी स्टोरीज जान सकते हैं एंड यू कैन एक्चुअली गेट मोटिवेशन फ्रॉम देयर. सो वी आर ऑल अ कम्युनिटी. लेट्स वर्क टुगेदर टुवर्ड्स वन कॉमन गोल एंड लेट अस all be happy and I love you guys. Bye.